Hello students, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia, and today we are going to discuss 10th class chapter number 2, acid, base and salt. In previous video, I'll explain the physical and chemical properties of the acids and base. And in this video, I'm going to cover the following topics: acids and bases in water solution, definition of the pH, importance of the pH in everyday life, salts, their derivation and their uses. So let's begin it. When acid react with the water, it will form hydronium ion because H plus ions cannot exist alone. They exist as an hydronium ions. So here HCl is an acid. When it dissolves in H2O, it will form hydronium ion plus Cl negative. In case of the bases, base when dissolved in water give hydroxide ions. NaOH is a base, and when it dissolves in the water, it will dissociate to Na plus and OH negative. Let's come to our next topic, pH. pH formula is minus log H plus ions. pH stands for potence dehydrogen, means the power of the hydrogen ions. pH value changes with the change in the temperature. pH value are used to compare the relative strength of different acid and base solution. pH is used as a universal indicator and is a mixture of the several indicators. It shows the different color at a different concentration of hydrogen ion in the solution. It ranges from 0 to 14. At 7, it is neutral. 0 to 7, acidic nature, and 7 to 14, basic nature. Okay? So ये लास्ट वाले डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि H प्लस आइंस जो हैं वो ब्लू वाले कलर से शो किए गए हैं, OH नेगेटिव जो आइंस हैं उसको हमने व्हाइट कलर से शो किया है. ठीक है, तो आप लोगों में से कुछ स्टूडेंट्स के दिमाग में चल रहा होगा कि जब pH सिर्फ OH H प्लस आइंस की कंसंट्रेशन को बताता है तो ये बेस की कंसंट्रेशन के लिए कैसे यूज होता है या बेस के इंडिकेट करने के लिए कैसे यूज होता है. तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हो कि H प्लस आइंस जो है वो इंक्रीज होते हैं जब 7 से हम लोग 0 की तरफ जाते हैं. ठीक है, बट यहाँ पे जब 7 के बाद हम लोग उसके राइट साइड में जाते हैं तो उसका बेसिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है. H प्लस आइंस जो है वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज होते रहते हैं. OH नेगेटिव आइंस जो है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती रहती है. ओके, आई होप यू हैवंट एनी डाउट. सो at this point 7, at the pH of 7, it's a neutral. And 0 to 7, it ranges acidic, hydrochloric acid, lemon, cola beverage, wine, beer, coffee. It's all have an acidic property. Okay, it ranges from 0 to 7. And gin, ammonia, soda, soft soap, sodium hydroxide, it ranges from 17 to 14 pH value. So what's the importance of the pH in everyday life? So pH plays a very significant role in biochemical reactions. For example, the blood in our bodies is maintained at the pH value of 7.35 to 7.45. Okay, our blood का जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, कहाँ से रेंज करता है वो 7.35 टू 7.45 तक. हमारा जो स्टमक होता है उसमें क्या होता है, आउटर लेयर जो होती है स्टमक की उसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर हम लोग कहें तो HCl जो है वो सीक्रेट होता रहता है जो हमारे डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है. ठीक है, जब HCl का लेवल ज्यादा बढ़ जाता है हमारे स्टमक में तो क्या होता है, हम लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है. और उस एसिडिटी की प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, या फिर उसको अगर देखा जाए तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग कोई भी बेस को लेते हैं. जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया MgOH, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जिसको बोलेंगे, या फिर आप लोग को सजेस्ट किया होगा, कभी घर में भी बोलते होंगे कि इनो ले लो, इनो से 6 सेकंड के अंदर आपकी एसिडिटी चली जाएगी. ठीक है, तो इनो जो होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है बेस का, और आपके पेट में क्या है, ऑलरेडी एसिडिटी लेवल बढ़ चुका है. तो एसिडिटी लेवल बढ़ चुका है, इट मीन्स आपको क्या करना है, बेस लेना है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी. ठीक है, नेक्स्ट pH of the soil. So most of the plant grows best when the pH of the soil is close to 7. I am repeating,
जब भी प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ तभी होती है जब सॉइल जो है, सॉइल की जो पीएच वैल्यू है वो किसके करीब हो, 7 के करीब हो. If the soil is too acidic or basic, the plant grows badly or do not grow at all. या तो 7 से अगर ज्यादा होगी, या तो वो एसिडिक होगी ज्यादा, या फिर वो अगर ज्यादा बेसिक होगी, तो या तो प्लांट बहुत बुरी तरीके से ग्रो होगा, मतलब वो ऐसा लगेगा वेल नरिश्ड नहीं होगा, या फिर वो ग्रो ही नहीं करेगा. तो सॉइल की जो पीएच होती है वो बहुत ज्यादा इफेक्टेड होती है केमिकल फर्टिलाइजर से भी, जो कि हम लोग फील्ड में यूज करते हैं. Chemicals can be added to the soil to adjust its pH and make it suitable for the growing plants. तो उसको pH को मेंटेन करने के लिए, जो सॉइल के अंदर pH है उसको मेंटेन करने के लिए, अगर वो ज्यादा एसिडिक है तो उसमें कुछ बेस चीजें डाल देंगे, बेस केमिकल्स डाल देंगे, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि वो मेंटेन हो जाए, 7 के करीब आ जाए. मतलब 6 to 6.8 तक अगर आपकी है सॉइल की पीएच, तो वहां पे क्या होगा, वो बैलेंस्ड पीएच है. ठीक है, सॉइल के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए प्लांट के. If the soil is too acidic, then it is treated with the material like quicklime or slake lime. Okay. And if the soil is too alkaline means it's in basic in nature, then उसकी alkalinity को reduce करने के लिए हम क्या करेंगे, decaying organic matters यानी कि manures वगैरह जो है उसमें pH soil के अंदर हम लोग add कर देंगे, जिससे उसकी pH को control किया जा सके या balance किया जा सके. pH in the mouth. The bacteria present in the mouth act on sugar and food particles remaining in the mouth after eating to produce acid. हमारे माउथ में जो बैक्टीरियाज होते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद कुछ जो माउथ में जो अपने खाने के पार्टिकल्स हैं वो रह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बैक्टीरियाज उस खाने को खाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे माउथ में एसिड्स जो है वो बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं. तो इसका बेस्ट वे क्या होता है प्रिवेंट करने का, या तो आप खाना खाने के बाद अपना माउथ बहुत अच्छे से क्लीन करो, ठीक है, या फिर आप उसका क्या यूज करो, टूथपेस्ट का यूज करो, जो कि टूथपेस्ट जो होता है वो क्या होता है, बेसिक इन नेचर होता है, जो हमारे टीथ को क्लीन करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमें टूथ डिके जो होता है, दांत जो खराब हो जाते हैं उनके लिए भी सही रहता है. ठीक है, एसिड बैक्टीरिया ने खाना खाया, जिसकी वजह हमने जो खाना खाया, वो जो खाना बच जाता है माउथ में, वो बैक्टीरिया उसको ईट करता है, एसिड प्रोड्यूस कर देता है. और अगर हम लोग टूथपेस्ट का यूज करते हैं, टूथपेस्ट जो कि बेसिक इन नेचर होती है, वो हमें टूथ डिके से क्या करती है, प्रिवेंट करने का, क्लीन करते हैं हमारे टिप्स को. ठीक है, हमारे माउथ का जो पीएच होता है वो 5.5 तक होना चाहिए. अब जब भी आपने देखा होगा, जब भी हम लोग को कोई बीज जो होती है, ठीक है, जब भी हम लोग को काट लेती है, तो हमें उस एरिया पे क्या हो जाता है, हमें बहुत ज्यादा इचिंग होती है, बहुत ज्यादा हम लोगों को स्वेलिंग भी आ जाती है, वहां पे पेन भी फील होता है. ठीक है, तो इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए क्यों होता है ये सब कुछ, क्योंकि जो बी थी उसने क्या किया, आपके शरीर के अंदर एसिड्स डाल दिए. ठीक है, उसके मुंह में जो एसिड था वो उसने स्टिंग किया, जिसकी वजह से एसिड आपके बॉडी में चला गया, जिसकी वजह से स्वेलिंग और मतलब इचिंग वगैरह, दर्द होना, ये सब शुरू हो गया था. तो अगर आप उसके ऊपर सोडा रब करते हो तो उससे क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा इचिंग और स्वेलिंग भी. ठीक है, चलिए अब मूव करते हैं सॉल्ट्स पे. सॉल्ट्स क्या होते हैं, तो सॉल्ट्स जो होते हैं वो एक आयनिक कंपाउंड होते हैं, जो किसकी वजह से बनते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की वजह से. जब भी एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करता है. ओके, सो हियर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये बेस है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एसिड है. ठीक है, when NaOH plus HCl react together they gives सोडियम क्लोराइड NaCl, जो हम लोग किचन में सॉल्ट यूज करते हैं, प्लस H2O. ठीक है, सॉल्ट्स जो कि इन ऐसे केमिकल्स जो फ्रॉम सॉल्ट्स, केमिकल्स फ्रॉम सॉल्ट, सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ब्लीचिंग पाउडर CaO Cl2, बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2CO3, 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4, 1/2 H2O. ठीक है, हाफ H2O ऐसा बोल सकते हो आप. तो ये जो होता है, यहाँ से जो आपका शुरू हो रहा है ये चैप्टर का पार्ट, आपको पता होगा ये चैप्टर आपके 3 मार्क्स कंटेन करता है. ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में 3 मार्क्स आते हैं, तो आपको ये बहुत ध्यान से पढ़ना है. इनकी प्रिपरेशंस कैसे ये डिराइव होते हैं, इनका प्रिपरेशन और इनके यूजेस पूछ लिए जाते हैं. ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा अभी आगे.
सो फर्स्ट वन इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको पता ही है, आपकी बुक में भी दिया हुआ है, क्लोर एल्कली प्रोसेस होता है जिसकी वजह से क्या होता है, हम लोगों को NaOH मिलता है। NaOH, ठीक है, उसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl में, ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन मींस NaCl के अंदर आप क्या ऐड कर रहे हो, H2O ऐड कर रहे हो, तो ये हो जाता है इसका एक्वस सॉल्यूशन। जब इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आप इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हो तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, NaOH प्लस Cl2 प्लस H2, ठीक है। यहाँ पे आपने देखा होगा कैथोड के ऊपर क्या होगा, आपके हाइड्रोजन H2 जो है, H2 गैस के रूप में आपका यहाँ पे आ जाएगी, कैथोड पे इकट्ठा हो जाएगा, और एनोड पे क्या हो जाएगा, क्लोरीन, और आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड। आप ये देख ही पा रहे हो इसमें एग्जाम आपके डायग्राम में, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। लास्ट ईयर इससे एक क्वेश्चन आ चुका है, तो आप प्लीज इसको ध्यान से पढ़िए। सॉल्ट जो बना है कैथोड पे, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन गैस जो है वो कैथोड पे इकट्ठी हो जाती है। तो ये जो हाइड्रोजन गैस होती है ये फ्यूल्स में, मार्गेरिन में, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स बनाने में जो अमोनिया यूज होती है उसके प्रिपरेशन में बहुत जगह ये यूज होती है। उसी तरीके से एनोड पे जो Cl2 बना था, Cl2 इकट्ठा हुआ था, उससे को हम लोग किस में यूज कर सकते हैं, वाटर ट्रीटमेंट में, स्विमिंग पूल्स में, पीवीसी में, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी मींस पॉलीविनाइल क्लोराइड, डिसइंफेक्टेंट बनाने में, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बनाने में, और पेस्टिसाइड्स बनाने में। और H2 और Cl2 जब ये दोनों एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसके यूजेस होते हैं क्लीनिंग इन स्टील, अमोनियम क्लोराइड, मेडिसिन एंड कॉस्मेटिक्स में इसका यूज किया जाता है HCl का। इसके बाद जो हमारा मेन प्रोडक्ट बना था NaOH, NaOH जो होता है वो डीग्रीसिंग, मेटल्स को ग्रीस हटाने के लिए यूज किया जा सकता है, सोप और डिटर्जेंट में यूज किया जाता है, पेपर मेकिंग में यूज होता है, आर्टिफिशियल फाइबर्स बनाने में यूज होता है, ठीक है। एंड NaOH और Cl2 दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, ब्लीच बना लेते हैं, जो कि हाउस होल्ड ब्लीचिंग जो काम होता है साफ सफाई के उसमें भी यूज होता है, फैब्रिक्स को ब्लीच करने में भी यूज होता है, ठीक है। Our next is ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, CaOCl2। ये जो प्रोड्यूस होता है ये क्लोरीन का स्लेक लाइम, आप इनके फॉर्मूला जरूर याद रखेंगे क्योंकि काफी बार क्वेश्चन में बोल दिया जाता है स्लेक लाइम, लाइम वाटर, लाइम्स ऐसा करके, तो आपको इनके नाम अच्छे से याद रखना है। स्लेक लाइम मीन्स CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस Cl2, तो इसमें क्या बन जाता है, CaOCl2 प्लस H2O। इसके यूजेस क्या होते हैं, ब्लीचिंग, कॉटन में या लिनन इंडस्ट्रीज में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है उनको ब्लीच करने में, पेपर इंडस्ट्रीज में वुड के जो पल्प होते हैं उनको ब्लीच करने में यूज होता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको यूज किया जा सकता है केमिकल इंडस्ट्रीज में। ये डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर को डिसइंफेक्टिंग करने में भी इसका यूज किया जाता है। Our next one is बेकिंग सोडा NaHCO3, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ना है इसको। NaCl plus H2O plus CO2 plus NH4 react together and gives the product NH4Cl plus NaHCO3. Okay, I am repeating, NaCl react with H2O plus CO2 plus NH4 and it gives NH4Cl plus NaHCO3. इसकी प्रॉपर्टीज जो है ये बहुत ही ज्यादा माइल्ड, मतलब बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, नॉन कॉरोसिव होते हैं। नॉन कॉरोसिव मतलब काफी लंबे समय तक चलते हैं, जल्दी खराब नहीं होते हैं। नॉन कॉरोसिव मतलब किसी भी चीज से जल्दी से रिएक्ट नहीं करते हैं। व्हेन इट इज हीटेड ड्यूरिंग कुकिंग के टाइम पे जब इसको गर्म किया जाता है बेकिंग सोडा को, तो ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। और इस CO2 का बहुत यूजेस है, मैं अभी इसी स्लाइड में आपको बताती हूँ इस CO2 का कहाँ यूज होता है। यूजेस अगर देखे जाए बेकिंग सोडा का, तो ये एक इंग्रेडिएंट है जो एंटासिड के रूप में भी यूज किया जाता है। आपका जो इनो होता है उसके अंदर भी बेकिंग सोडा भी आता है, मतलब सोडा ही यूज होता है उसके अंदर, ठीक है। एंटासिड की तरह यूज होता है, एसिडिटी बढ़ जाती है उसको रिलीज, मतलब उसको प्रिवेंट करने के लिए भी यूज होता है। ये फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज होता है, क्या, लिक्विड CO2 और लिक्विड SO2 उसके अंदर यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर में। और बेकिंग पाउडर बनाने में भी, बेकिंग सोडा से बेकिंग पाउडर बनाने में, जब हम लोग बेकिंग पाउडर के अंदर टार्टरिक एसिड
ऐड करते हैं बेकिंग सोडा के अंदर टार्टरिक एसिड ऐड करते हैं तो क्या बनता है, बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर के क्या यूजेस होते हैं, ये ब्रेड केक में यूज होता है। ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी बना देता है, ब्रेड्स और केक को फर्मेंट कर देता है अच्छे से। और ये सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी किस वजह से बनाता है, CO2 की वजह से, जो कि किसमें, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं तो उसमें से CO2 निकलता है ना, तो ये CO2 की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है, टेक्सचर आता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 10H2O। इसका नाम मैं बताऊं तो आपको, सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट, ठीक है। 10 को हम डेका बोलते हैं और हाइड्रेट, ठीक है। रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट गिव्स अ वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट को अगर हम लोग रिक्रिस्टलाइज करते हैं तो वॉशिंग सोडा बनता है। और ये जो सॉल्ट बनता है, ये सॉल्ट किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है। When Na2CO3 react with 10H2O, it will form Na2CO3 10H2O, ठीक है, समझ में आया। इसमें हमने जो H2 मॉलिक्यूल ऐड किए हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसका यूज होता है ग्लास में, सोप और पेपर इंडस्ट्रीज में, बोरैक्स को मैन्युफैक्चर करने में, क्लीनिंग एजेंट की तरह भी यूज होता है हाउसेज में, और हार्डनेस ऑफ द वाटर को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा का यूज किया जाता है। Next one is plaster of Paris, CaSO4 half H2O, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या बोलते हैं इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। When heating gypsum CaSO4 2H2O, it is very hard substance। सूखने के बाद ये बहुत ज्यादा हार्ड हो जाता है, and it is also used in cement factories, okay, to make the cement. So when gypsum heated at the temperature of 100 degrees Celsius, if we are calculated 100 degrees Celsius into the Kelvin, then it will 373 Kelvin, okay. It loses the water molecule and became POP. POP stand for plaster of Paris. It is a white powder. On mixing with water, it change in the जिप्सम। ये जो पीओपी होता है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है, ये एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है। और जब इसको वाटर के साथ मिक्स किया जाता है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। CaSO4 half H2O plus 1.5 H2O, it converted CaSO4 to H2O, ठीक है। Uses, doctors using to support the fractured bone, for making the toys, decoration materials, for making the surface smooth, okay. It is very important topic which are covered in this video. Please watch it very carefully, prepare the notes for it. Thank you so much. If you like my video, please share and subscribe my channel, Vinita Shekhawat. And I cover almost all the topics in it. Prepare notes, study well, study carefully. Thank you so much.